8 फरवरी کے انتخابات کالعدم قرار دینے سے متعلق دائر درخواست کا یہ معاملہ ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ آج سماعت کرے گا۔ جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی بینچ کا حصہ ہوں گے۔ سپریم کورٹ اپنی نگرانی میں 30 دن کے اندر نئے انتخابات کا حکم دے۔ درخواست میں موقف پری پول دھاندلی، نتائج میں تاخیر کے بعد جمہوری اصولوں کو 8 فروری کے انتخابات کالعدم قرار دینے سے متعلق دائر درخواست کا معاملہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ آج سماعت کرے گا۔ جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس مسرت ہلالی بینچ کا حصہ ہوں گے، جبکہ سپریم کورٹ اپنی نگرانی میں 30 دن کے اندر نئے انتخابات کا حکم دے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ ملک میں آمرانہ نظام لانے کی کوشش کی تو سخت مزاحمت کریں گے۔ ہم نے ایک بار پھر پاکستان کو بچانا ہے۔ انہوں نے ٹھٹھا میں یوم تشکر کے جلسے سے خطاب میں مزید کہا، ایک طرف اپنے آپ کو مولانا کہتے ہیں اور مولانا کہہ کر جھوٹ بولنا مذاق ہے۔ ایک پیر کہہ رہا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، ہم نے تو آپ کو 3-4 بار ہرایا، میں 2 سیٹوں میں سے 1 سیٹ چھوڑ رہا ہوں۔ پیر ہو یا مولانا، آ کر مقابلہ کر لیں۔ مجھے کہا گیا پہلے 3 سال ہمارا وزیر اعظم، پھر اگلے 2 سال آپ وزیر اعظم بن جائیں۔ میں اس طرح وزیر اعظم نہیں بننا چاہتا۔ تمام سیاسی جماعتیں جیتے یا ہارے وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ اب اس ماحول میں پاکستان کیسے ہی چلے گا؟ یہ ماحول رہا تو پاکستان کو معاشی بحران سے کون نکالے گا؟ ایک طرف اپنے آپ کو مولانا کہتے ہیں، اپنے آپ کو مولانا کہہ کے پھر اتنا ڈھٹائی سے جھوٹ بولنا مذاق ہے۔ دوسرا پیر صاحب ہے، اب یہ پیر صاحب کہہ رہا ہے کہ دھاندلی ہوا۔ آپ مجھے بتائیں کہاں دھاندلی ہوا پیر صاحب؟ ویسے میں نے 2 سیٹیں نکالے، وہ 2 سیٹ نکالے تو 1 کو چھوڑنا پڑے گا۔ جب 1 چھوڑتا ہوں، چند مہینوں بعد بائی الیکشن ہوگا، تو میں جو شکایت کر رہے ہیں، چاہے وہ پیر صاحب ہو یا مولانا صاحب ہو، کہ 1 سیٹ تو میں چھوڑ رہا ہوں نا، تو آئے پھر وہ چھوڑا ہوا سیٹ پہ مقابلہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ کا اوقات کیا ہے۔ دوسری طرف آپ کو بتاتے چلیں کہ رہنما پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان نے دھاندلی اور انتخابی نتائج میں مبینہ تبدیلی کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے پورے ملک میں 180 سیٹیں جیتی ہیں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں انہوں نے مزید کہا کہ سابق کمشنر راولپنڈی نے اپنے ضمیر کے مطابق آواز اٹھائی۔ پنجاب میں ہماری اکثریت کو کم کیا گیا، بلوچستان میں بھی ہماری سیٹیں کم کی گئیں، ہارے گئے امیدواروں کو جتوایا گیا۔ عمر ایوب کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم نے کراچی میں پی ٹی آئی کی 18 نشستیں چرائی ہیں۔ کراچی کی سیٹوں پر پی ٹی آئی امیدواروں کو کامیاب قرار دیا جائے۔ پی ٹی آئی مرکز اور صوبوں میں حکومت بنائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف ہم آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں، ہمارے 180 سیٹیں ہیں پاکستان میں۔ کل جس طریقے سے راولپنڈی کی کمشنر نے پریس کانفرنس کی ہے، اس نے اپنے ضمیر کے مطابق آواز دی ہے، اور ہماری جو میجارٹی تھی پنجاب میں اس کو ڈائلوٹ کیا گیا۔ بلوچستان میں جو سیٹیں ملی تھی ان کو بھی کم کیا گیا۔ صبح کے وقت ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ کو جتوایا اور جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ کو ہروایا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ فارم 45 کے مطابق جو ایک سٹیچوٹری فارم ہے، جو پریزائڈنگ افسران صاحبان نے ایشو کیے ہیں اور آر او کے دفاتر میں جمع ہے، اس کے مطابق رزلٹ ڈکلیئر کیے جائیں۔ پاکستان تحریک انصاف باضابطہ مطالبہ کرتی ہے کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنے اور اس کی انکوائری ہو۔ ہماری سیٹس کراچی میں تقریباً 18 سے 19 متحدہ قومی موومنٹ ایم کیو ایم نے پی ٹی آئی کی چرائی ہیں۔ اہلکاروں کو ہماری کراچی کی سیٹس فی الفور واپس دینی چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف مرکز میں اور صوبوں میں حکومت بنائے گی۔ یہ کرسی دلوں پہ راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی امانت ہے۔ اسحاق ڈار بلاول بھٹو کی بیان بازی پر رنجیدہ۔ بلال بھٹو کا بیان ہمارے لیے سرپرائزنگ ہے۔ بلال بھٹو اس طرح کی بات نہ کرتے تو مناسب ہوتا۔ ہماری کمیٹیوں میں طے پایا تھا حتمی فیصلے تک پہنچنے تک کوئی بھی بات نہیں کی جائے گی۔ دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے۔ یہ کوئی کنکلوڈ نہیں ہوگا تو دیکھیں جو پارلرز ہوتے ہیں 4 راؤنڈز ہو چکے ہیں، ان کی طرف سے کئی پروپوزلز
आई होंगी, हमारी तरफ से कई काउंटर प्रपोजल होंगी। इसके बावजूद जो है वो अभी तक फाइनल हतमी शक्ल नहीं हुई, लेकिन ये मुनासिब होता कि ये बात ना की जाती पब्लिकली। और जो मुल्क की जिस क्वागमायर में फंसा हुआ है वो तो पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून ने नहीं उसको यहाँ लाके खड़ा किया। दोनों पार्टीज की लीडरशिप इस पर सिंसियर है कि जी इस मुल्क को इस भंवर से निकालना है। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि ब्यूरोक्रेसी को कानून शिकनी पर उकसाने वालों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। ब्यूरोक्रेसी को धमकियों का मतलब रियासती निज़ाम में इंतशार पैदा करना है, जिसकी खुली छूट तबाही को दावत देना है। अफसरान की सलामती को खतरे में डाला गया तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अफसरान की सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ये कहना है कि ब्यूरोक्रेसी को कानून शिकनी पर उकसाने वालों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। ब्यूरोक्रेसी को धमकियों का मतलब रियासती निज़ाम में इंतशार पैदा करना है, जिसकी खुली छूट तबाही को दावत देना है। अफसरान की सलामती को खतरे में डाला गया तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। ब्यूरोक्रेसी को कानून शिकनी पर उकसाने वालों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। मरियम नवाज का ये कहना है कि ब्यूरोक्रेसी को धमकियों का मतलब रियासती निज़ाम में इंतशार पैदा करना है, जिसकी खुली छूट तबाही को दावत देना है। अफसरान की सलामती को खतरे में डाला गया तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अफसरान की सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। जमात इस्लामी ने इंतखाबात को मुल्की तारीख का आलूदा तरीन इलेक्शन करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी का कहना है कि जाली नताइज के नतीजे में बनने वाली हुकूमत कभी नहीं चलती। सिराजुल हक ने 23 फरवरी को धांधली के खिलाफ पेशावर में एहतजाज का ऐलान किया। लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मंसूरा लाहौर में लियाकत बलोच और कैसर शरीफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं 2024 का इलेक्शन पाकिस्तानी तारीख का आलूदा तरीन इलेक्शन था। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां इलेक्शन के बाद इंतशार में इजाफा होता है। रावलपिंडी का कमिश्नर देग का एक शावल है, सारी देग ही ऐसी है। 2024 का इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का आलूदा तरीन इलेक्शन था। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां इलेक्शन के बाद इंतशार और फसाद में इजाफा होता है। रावलपिंडी का कमिश्नर देग का एक चावल है, सारा देग ऐसा ही है। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि हमारी जमहूरियत 8 फरवरी के इलेक्शन के नतीजे में जमीन तले दब गई। अब आइन और कानून की हुक्मरानी के अलावा कोई रास्ता नहीं। जाली नताइज के नतीजे में बनने वाली हुकूमत कभी नहीं चलती। जिस जाली इलेक्शन के नतीजे में और जाली नताइज के नतीजे में हुकूमत बनती है वो हुकूमत चलते नहीं है, वो अवाम की हुकूमत नहीं होती, वो एक फ्रॉड हुकूमत होती है, कमज़ोर हुकूमत होती है। न अपनी कौम उसको सीरियस लेती है, न बाहर की दुनिया उसको संजीदा लेती है। सिराजुल हक ने 23 फरवरी को धांधली के खिलाफ पेशावर में एहतजाज और 25 फरवरी को इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया। इसमें नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से बनाई गई कमेटी के इजलास में बड़ी पेशरफ। पीपल्स पार्टी ने वफाकी कबीना में शामिल होने के लिए नीम रजामंदी का इंदिया दे दिया। मुस्लिम नून और MQM के दरमियान मुज़ाकरात का एक और राउंड शुरू होगा। कराची से मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। सियासी जमातों की हुकूमत साजी के लिए कोशिशें जारी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से बनाई गई कमेटी के इजलास में ठोस पेशरफ्त हुई है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने वफाकी काबीना का हिस्सा बनने पर नीम रजामंदी जाहिर कर दी है। दोनों जमातों की कमेटी ने मुजव्विज़ा वफाकी काबीना, स्पीकर, चेयरमैन सेनेट के ओहदों की तकसीम पर भी बात की है। दोनों जमातों की जानिब से मुख्तलिफ अमूर पर मजीद मुशावरत जारी है, जबकि दोनों जमातों में सदारती इलेक्शन और दीगर हुकूमती और पार्लिमानी मामलात पर बातचीत मस्बत सिमत में आगे बढ़ रही है। दूसरी जानिब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की मुज़ाकराती कमेटी पीर की शाम इस्लामाबाद पहुँचेगी। MQM मुज़ाकराती कमेटी में मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार और गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने 9 मुंतखब अरकान सिंध असम्बली का इजलास बुला लिया है। 9 मुंतखब अरकान सिंध असम्बली को पीर के रोज कराची पहुँचने की हिदायत दी गई है। पीपल्स पार्टी के सिंध असम्बली में पार्लिमानी पार्टी के इजलास में आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। सिंध असम्बली की 84 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, जबकि 3 आज़ाद अरकान भी पीपल्स पार्टी में शामिल होने का अंदिया दे चुके हैं। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी का पहला इजलास। इंक्वायरी कमेटी ने लियाकत चट्टा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ट्रांसक्रिप्ट मंगाने के लिए चेयरमैन पेमरा को खत लिखने का फैसला किया। रिपोर्ट।
कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी कमेटी का पहला इजलास, रावलपिंडी डिवीजन के DROs और ROs बारी बारी तलब। इंक्वायरी कमेटी का इजलास इलेक्शन कमीशन के सीनियर मेंबर निसार दौरानी की जेर सदारत हुआ, जिसमें सेक्रेटरी समेत दीगर अराकीन शरीक हुए। कमेटी ने कार्रवाई रोजाना की बुनियाद पर चलाने का फैसला किया। रावलपिंडी, अटक, जहलम और चकवाल के रिटर्निंग अफसरान इंक्वायरी कमेटी के सामने बयानात कलमबंद करवाएंगे। कमेटी आइंदा 3 रोज में अपनी रिपोर्ट मुरतब करके इलेक्शन कमीशन को पेश करे। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और कानूनी चाराजोई का फैसला किया जाएगा। कुलियात के बराई इलाकों में बर्फबारी का दूसरा स्पेल शुरू हो गया। नशेबी इलाकों में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई है। अयूबिया, नथिया गली, डोंगा गली और छांगला गली में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 2 रोज तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। वादी नीलम में कुछ दिन मौसम साफ रहने के बाद वादी नीलम की जागरा वैली, क्यूटन, लबाद बाला, शारदा, केल, ताओबट में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। दीर बाला में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया। शहरी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। दीर बाला के इलाके दीर समेत मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला रात से जारी है। लबारी टनल और उसके अतराफ में 2 से 3 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है।